Sri Ram decides to shoot an arrow in an attempt to dodge the arrow. Ravan decides to jump off from his Pushpavan. Will it work? Let's see. नमस्कार. The scenario is such कि यहाँ से एक arrow release किया गया. The moment this target, at the same moment the arrow is released, the target is also dropped from rest. The question is, will this arrow hit the target or not? The answer is, let's find out. Alrighty then. So अगर हमने arrow को launch किया ऐसे, if we break the motion, the kinematics into x and y direction, we see the velocity along the x direction is provided, let it be some u meter per second of the arrow, but the velocity along the x direction of the target is nothing, it is 0. Also, since it is released from rest, the velocity along y direction is also 0. ठीक है, इसका y direction में velocity 0 है, x direction में भी 0 है, then इसका x direction में कुछ है velocity जिससे तुमने छोड़ा, और इसका y direction में भी 0 है. ठीक है, because you are only giving it a horizontal velocity and vector has no component perpendicular to it. ठीक है, तो अब सिनेरियो देखिए. along the x direction, neglecting air resistance, along x direction there is no what other acceleration. air resistance को छोड़ दिया जाए तो कोई और acceleration है ही नहीं. along x it is 0. for this both, let it be any medium, water है, कुछ भी है, air है. but along the y direction, on the two objects, a constant gravitational acceleration 9.8 meter per second approximately, meter per second square approximately, is acting downwards. इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर. What is it trying to do? It is trying to pull the arrow downwards. It is also trying to pull the target downwards. ठीक है. अब अगर तुम ध्यान से देखो, the displacement along x direction, this has nothing. इसका कुछ acceleration में होने वाला नहीं है, सीधा down जाएगा along y. But the displacement the arrow has is along x also, due to this momentum already provided, this velocity, initial velocity provided, it will take it forward. And along y direction there is gravitational acceleration which will increase its velocity, which was 0 along the y direction, to something with respect to time. टाइम के साथ ये velocity बढ़ता जाएगा और ये arrow भी नीचे आता जाएगा, सीधा तो नहीं जाएगा. It will not go straight, it will go in a projectile path. वैसे ही ये बस डाउनवर्ड जाएगा. अब चलो देखते हैं ये हिट करेगा कि नहीं. एट एनी आफ्टर सम टाइम, लेट बी लेट्स से आफ्टर टाइम t सेकेंड्स. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल जितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा छोड़ो, लेकिन वर्टिकली मान लो कुछ देर बाद आरो यहाँ पे होगा. दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस y will be how much? Think about it. इनिशियल पॉइंट से नीचे आया, जो नीचे आया वो कितना होगा? You can apply ut minus half at square. So applying that, ut will become 0 and minus y because of gravitational acceleration is pulling it down. तुम इसको प्लस भी ले सकते हो. Depends on तुम कौन सा डायरेक्शन को. मैंने अप पॉजिटिव लिया था इसीलिए मैंने माइनस लिया था. If you take it plus along the motion, you can take it plus. So half g और क्या टी स्क्वायर अर्थ. ठीक है, नीचे कहीं अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ ऐसा तो नहीं होगा, इट विल बी फ्लैट हियर, बट द अर्थ इज पुलिंग बोथ द थिंग्स, बोथ द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स देम. ठीक है, खींच रहा है नीचे ड्यू टू देयर मास, ग्रेविटेशनल पुल. सो इसके वजह से वो नीचे खींच रहा है, इसको भी और उसको भी. कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है या कितना फोर्स डाल रहा है? इट इज गिविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, टू बोथ द बॉडीज. इट इज इक्वल फॉर बोथ द बॉडीज, यू नो इट ऑलरेडी. तो इसको भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे खींच रहा है, इसको भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड खींच रहा है. दोनों को सेम है. तो आफ्टर लेट से आफ्टर टाइम t सेकंड्स, तो आफ्टर टाइम t सेकंड्स कुछ समय बाद
अगर हम देखें तो ये एरो सीधा तो नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधा जा रहा है बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी यू हैव गिवन, और नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन पुल ड्यू टू द अर्थ। तो इट विल फॉलो ए पाथ बोथ इन एक्स डायरेक्शन एंड बोथ इन वाई डायरेक्शन। तो कुछ ऐसा गया होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट इट विल डू इन द वाई डायरेक्शन, हाउ मच इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम t, दैट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला डालते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच, हाफ जी टी स्क्वायर, नथिंग एल्स। एंड इफ यू लुक एट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t ऑफ द टारगेट, ये भी कुछ नीचे चला गया होगा। क्या दोनों सेम है? सेम है। क्यों? क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन ऑफ दिस टारगेट इज ऑल्सो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। So if you look at it, the initial velocity is 0 along y for both of them. So the vertical displacement, this y, it will be same for the target and same for the arrow. ये दोनों के लिए सेम है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब क्या है इसके? बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि at any instant of time t, both of them are at a same depth या same height from the ground. कुछ देर बाद तुमने फिर से देखा तो एरो कहीं आगे था और कहीं और नीचे, और कुछ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर गया होगा, लेकिन उस समय भी द टारगेट विल बी इन द फ्रंट ऑफ द एरो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज only one acceleration is acting constant for both of them. The only thing which is pulling both of them downward is same, 9.8 meter per second square for this and 9.8 meter per second square for this. So since the acceleration along the y direction is same, the displacement done is also with respect to time is also same. यही लॉजिक है। तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर, कुछ देर बाद एरो और आगे जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल फॉलो दिस पाथ। तो इसके वजह से तुम देखो तो हर जगह पे at any instant of time the target and the arrow are in the same straight line. हर जगह पे आफ्टर एनी टाइम t, एनी तुम कुछ भी रैंडम टाइम t ले लो, कुछ समय के बाद हमेशा ही ये दोनों, ये ऑब्जेक्ट, ये टारगेट एंड द एरो व्हिच यू हैव फायर्ड, ये दोनों सेम लाइन ऑफ, क्या सेम लाइन के में रहेंगे, दे विल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गैप उनमें कम हो रहा है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि एरो विल बी कमिंग क्लोजर, बट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ से जितना नीचे होगा ये उतना भी नीचे ही होगा, वहाँ से जितना नीचे होगा ये फिर से उतना नीचे होगा, दोनों सेम लाइन में रहते ही गए। तो इफ़ यू प्रोवाइड एनफ डिस्टेंस फॉर देम, ऑब्वियसली एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे विल व्हाट, दे विल मीट। ये जहां पे भी एरो रहा उसी हाइट पे भी ये टारगेट रहा। मजे की बात है, देखो लग तो नहीं रहा था मीट करेंगे, लेकिन दे विल डेफिनेटली मीट। अगर तुम एनफ जगह दोगे उनको तो वो जाके मीट करेंगे। अगर मीट नहीं किए और ग्राउंड पे गिर गए तब भी दोनों ही, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ दे डोंट हिट इच अदर एंड दे स्ट्राइक द ग्राउंड बिफोर दे डू हिट इच अदर, तो एट दैट मोमेंट ऑल्सो वन थिंग इज श्योर, व्हाट, दे विल बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। जब भी ग्राउंड पे पहुंचेंगे, मान लो ये यहाँ पे गिर गया और ये यहाँ पे गिर गया, तो द टाइम एट विच दे विल हिट द ग्राउंड विल बी ऑल्सो सेम, आर्बिटरी, एनी टाइम में तुम देख लो इक्वल डिस्टेंसेस पे रहेंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये जो गैप है उनके बीच में वो कम हो रहा है, दैट इज एविडेंट। वाई इज द गैप डिक्रीजिंग? बिकॉज द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इज नॉट जीरो, इट इज समथिंग एल्स। velocity of the target with respect to this will be 0 minus, अगर ये u है तो it is minus u. So this distance between them, it will decrease at the rate of minus u meter per second. Per second it will decrease at the rate of velocity. जिसका जितना velocity तुम इसको दोगे उतने ही मीटर पर सेकेंड से ये distance between them कम होते जाएगा x direction में। लेकिन ये जो vertical displacement है, it will remain same. They will remain at the same heights. अगर तुम मारने के लिए अलाउ करोगे या फिर एनफ डिस्टेंस दोगे तो ये सर्टन है कि एरो जाके कहीं ना कहीं टारगेट को
टच करने वाला है. सो इट्स ए गुड हिट, राइट? So I hope you understood. Don't get confused in what any other direction. So always analyze in these kind of situations. Always analyze the motion along x and y. Our verdict is the arrow is going to hit the target for certain. ठीक है? Take care. Bye bye.